Hello students, today we are going to start a new topic, that is accounting equation. So open your books and we are starting accounting equation. In accounting equation, I will tell you first of all the meaning of accounting equation and then we will proceed to the numerical questions. First of all, the meaning is an accounting equation is mathematical equation. It is mathematical equation which shows that the assets and liabilities of a firm are equal. An accounting equation is mathematical equation, that is first thing, it is mathematical equation and which shows that क्या शो कर रही है that the assets and liabilities we are describing two things here, assets and liabilities of a firm are equal. In liabilities we have outside liability and capital. Outside liability means liabilities to outsiders, the liabilities which are payable to outsiders, and in capital we are saying that capital is owner's capital, that is investment by owner. In accounting equation basically two things I am telling you. First is it is mathematical equation and second is assets are equal to liabilities, and in liabilities we have outside liabilities and capital. Outside liabilities means the liabilities which are payable to outsiders, and capital, owner's capital. So these two should be equal. So here is I have written accounting equation assets equal to liabilities plus capital. Here I have written liabilities plus capital because liabilities are equal to outside liabilities and capital. So this is your accounting equation, assets are equal to liabilities plus capital. So whenever a person invest money in the business, he himself and business is two separate things. तो ये बात मैंने आपको जब प्रिंसिपल्स करवाए हैं तो मैंने आपको ये प्रिंसिपल करवाया था कि बिजनेस में सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट करवाया था कि जब एक पर्सन इन्वेस्ट करता है बिजनेस में तो वो पर्सन और बिजनेस दोनों डिफरेंट होते हैं. अगर मान लो मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ और अगर मैं उसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ तो वो बिजनेस एक सेपरेट थिंग होगी और मैं अलग से एक ऑनर हूँ. सो वी कैन से जो कैपिटल है वो बिलोंग करती है बिजनेस से, ऑनर की है, बट जब ऑनर इन्वेस्ट कर देता है तो वो बिजनेस से बिलोंग करती है. तो हम ये कहेंगे कि जितनी भी बिजनेस की असेट्स हैं, वी विल टॉक हियर बिजनेस अबाउट द बिजनेस की जितनी भी असेट्स हैं उसकी लायबिलिटीज और कैपिटल ऑनर की कैपिटल के इक्वल होंगी. तो ऑनर की कैपिटल भी अगर देखा जाए तो एक तरह से लायबिलिटी होती है कि ऑनर ने बिजनेस में पैसे लगाए और ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑनर को पैसे वापस करे. तभी मैं यहाँ पे कह रही हूँ आपको कि यहाँ असेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज. तो लायबिलिटीज में हमारे पास टू टाइप की लायबिलिटीज हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज एंड कैपिटल. एक तो वो लायबिलिटी जो हमने दूसरों को देनी है, वी आर लायबल टू पे टू अदर्स, एंड कैपिटल वो जो ऑनर को हमने वापस करनी है. सो वी हैव अकाउंटिंग इक्वेशन हियर, assets is equal to liabilities plus capital. First of all, in previous videos we have done accounting terms, basic accounting terms. I think you
now already know what are business basic accounting terms. So I will tell you what are the basic terms are under assets, what are the terms under liabilities, and what are the different terms that are under capital. So we are describing here in individual sense. So if we talk about assets, assets are the property of the business. बेसिक टर्म्स में आपने किया था कि असेट्स प्रॉपर्टी होती है बिजनेस की, तो हम देखते हैं कि असेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं. फर्स्ट आता है कैश, बिजनेस का कैश. देन बैंक, बिजनेस का अगर कोई बैंक बैलेंस है. देन वी हैव स्टॉक, बिजनेस के पास अगर स्टॉक पड़ा है. स्टॉक मीन्स कि वो गुड्स पड़ी हैं कुछ जो अनसोल्ड हैं. देन फर्नीचर, फर्नीचर भी बिजनेस की असेट है. देन डेटर, डेटर वो है जिनको हमने क्रेडिट सेल की है और अभी तक हमें पैसे नहीं मिले, तो वो हमारी असेट्स हैं. देन इन्वेस्टमेंट्स. देन प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच वी हैव पेड अर्लियर. दैट मीन्स कि हमें अभी हमने वो एक्सपेंसेस पे नहीं करने थे, बट हमने वो पहले से ही पे कर दिए हैं. दीज आर प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहले से ही पे कर दिए हैं. सपोज मैंने अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना था, तो अभी पूरा ईयर हुआ नहीं है, तो मुझे पहले से ही मैंने सारा एडवांस में रेंट पे कर दिया, तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड रेंट होगा. प्रीपेड मीन्स कि पहले से ही पे कर दिया, बट उतनी देर के लिए, जितनी देर के लिए वो टाइम लिमिट क्रॉस नहीं करते, उतनी देर के लिए वो हमारी असेट होगी. देन वी हैव एक्रूड इनकम्स, वो इनकम्स जो अभी तक हमने रिसीव नहीं की हैं और वो हमारी इनकम है. देन बिल्डिंग, वी हैव बिल्डिंग एज प्रॉपर्टी. देन वी हैव मशीनरी and many other things we can have in assets. assets में हमें ये सारी चीज़ें और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी देखने को मिलेंगी. Then we will talk about liabilities. liabilities में क्या क्या आता है, and we are talking here about outside liabilities. So liabilities में हमारे पास creditors आते हैं. हमने परचेजेस की और हमने उनको पेमेंट नहीं की तो हमारी लाइबिलिटी है. देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हमें पे करने थे बट अभी हमने पे ही नहीं किए, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं. बैंक लोन, हमने बैंक से लोन लिया और वो हमारी लाइबिलिटी है. अनअर्न्ड और एडवांस इनकम, कुछ ऐसी इनकम्स जो हमने एडवांस में ही रिसीव की हुई हैं. अनअर्न्ड, पहले अर्न नहीं की अभी हमने, उसके लिए अभी हमने सर्विसेज नहीं दी हैं, बट हमने पहले से ही वो ले ली हैं, अमाउंट लिया है, तो उतनी देर के लिए, जितनी देर के लिए हमने सर्विसेज नहीं दी हैं, तो वो लाइबिलिटी होगी. फॉर एग्जांपल आपने जैसे सपोज पहले से ही कुछ पेमेंट ले ली, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी आपने और पहले से आपने वो पेमेंट ले ली, या फिर हम सपोज कर लेते हैं कि लैंडलॉर्ड ने आपसे 6 मंथ्स का रेंट पहले ही ले लिया, तो पहले ही ले लिया, दैट मीन्स उसके लिए ये अनअर्न्ड इनकम होगी. ये अनअर्न्ड इनकम, दैट मीन्स उसने एडवांस में ही ले लिया, तो उसके लिए उतनी देर के लिए वो लाइबिलिटी होगी जितनी देर के लिए 6 मंथ्स नहीं होते. देन वी हैव इनकम. So these are the liabilities. These are unearned income and advance income. So these are the liabilities. These are the liabilities payable to outsider. Then we will talk about capital. What is capital? अगर ऑनर बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करता है तो वो उसकी कैपिटल होगी. अगर बिजनेस में कुछ और इन्वेस्टमेंट करता है, मान लो मैंने 1 लाख रुपए शुरू में ही इन्वेस्ट किया और उसके बाद मुझे और 50,000 चाहिए थे, तो मैंने बिजनेस में और इन्वेस्ट कर दिए 50,000, तो मैं और बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है. तो बिजनेस में अगर मैंने इन्वेस्ट किए हैं, दैट मीन्स कि मैंने एडिशनल कैपिटल बिजनेस को और दी है, तो ये एडिशनल कैपिटल हो गई 50,000. प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड इनकम, अगर कुछ प्रॉफिट होता है
तो वो कैपिटल में ऐड होगा, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट होता है वो उस पर्सन का ही होगा जिसने इन्वेस्टमेंट की है, जिसने कैपिटल लगाई हुई है। अगर कोई रेवेन्यू होता है, इनकम होती है, वो भी उस पर्सन की होगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मान लो आपने रेंट रिसीव किया, कमीशन रिसीव किया, ये सारी इनकम्स और प्रॉफिट्स इसमें आएंगे कैपिटल में। देन वी हैव ड्रॉइंग्स। अगर मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे चाहिए थे, पेमेंट किसी को करनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बिज़नेस से ले लूँ। देन मैं 20,000 रुपीज़ वहाँ से बिज़नेस में अपनी अमाउंट में से निकाल रही हूँ, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। ये सारी बेसिक टर्म्स आपको मैंने क्लियर करवाई हुई हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर में, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो ड्राइंग्स हैं, तो इससे कैपिटल रिड्यूस होगी, तो ये भी यहाँ आएगी क्योंकि इसका इफेक्ट कैपिटल पे पड़ेगा। और लॉस और एक्सपेंस हो रहे हैं, अगर हमें कुछ लॉस हो गया तो वो भी हमारा कैपिटल में से डिडक्ट होगा, और एक्सपेंसेस हो गए तो वो भी कैपिटल में से ही खर्चा होगा। जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास जो पैसे हैं उसी में से ही हमें खर्चा करना है, और जो इनकम आएंगी वो भी उसी में ही ऐड होंगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। वी हैव असेट्स, वी हैव लायबिलिटीज, वी हैव कैपिटल। इनमें से कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि ये असेट्स हो सकती हैं, ये लायबिलिटीज हो सकती हैं, और इनके अलावा और भी हो सकती हैं, कैपिटल हो सकती है। तो अगर आपके पास असेट्स इंक्रीज करती है, दैट मीन्स मान लो आपके पास कैश है और आपके पास कैश और आ गया बिजनेस में, कैश अगर और आ गया, बढ़ रही है, तो आपको वो ऐड करनी है, असेट्स में ऐड करनी है। और अगर असेट्स कम हो रही हैं तो वो आपको सबट्रैक्ट करनी है। इसी तरह से हम लायबिलिटीज लेते हैं, अगर लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो आपको ऐड करनी है लायबिलिटीज। मान लो क्रेडिटर हैं या बैंक लोन हमने और ले लिया, तो लायबिलिटी बढ़ गई, दैट मीन्स कि हम लायबिलिटीज की अमाउंट में ऐड कर देंगे कि हमारी लायबिलिटी और बढ़ गई है। और अगर हमारी लायबिलिटी कम होती है तो उसमें से हम डिडक्ट कर देंगे। और कैपिटल, मान लो ये दो आइटम्स हैं, जैसे ये कैपिटल को बढ़ा रही हैं, अगर एडिशनल कैपिटल आती है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगी, प्रॉफिट होता है तो भी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, रेवेन्यू एंड इनकम होती है वो भी कैपिटल में ऐड हो जाएंगी। तो ये दोनों आइटम्स हैं कैपिटल में ऐड हो रही हैं। देन वी हैव ड्रॉइंग्स, लॉस एंड एक्सपेंसेस, इससे हमारी कैपिटल रिड्यूस होगी, तो ये कैपिटल में से कट होंगे। सो वी हैव नाउ असेट्स, liabilities and capitals. You know that accounting equation is mathematical equation and which shows assets and liabilities which are equal. So assets और liabilities दोनों equal होती हैं। असेट साइड में हमारे पास असेट्स हैं, और अगर हम लाइबिलिटीज को देखें तो हमारे पास टू थिंग्स हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स कैपिटल। So we have two things here, assets and liabilities. In liabilities we have outside liabilities, then capital. So these are the basic terms, some basic terms I have told you. In spite of these terms, we have some more terms also. So ये अगर आपके पास असेट्स बढ़ रही है तो आप ऐड करोगे, अगर आपके पास असेट्स कम हो रही है तो आप डिडक्ट करोगे, और अगर आपके पास लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो आप ऐड करोगे, और अगर लायबिलिटीज कम हो रही हैं तो आप डिडक्ट करोगे। कैपिटल अगर बढ़ रही है तो इन चीज़ों से बढ़ेगी, और अगर कैपिटल बिजनेस में कम हो रही है तो इन चीज़ों से कम होगी। तो ये सारी चीज़ें जब हमने ये सपोज करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है, तो हमने जब भी चैप्टर्स करने हैं तो हमने ये सोच के करना है कि बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। तो जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल्स बताए थे, वो प्रिंसिपल अब जब हम अकाउंटिंग में चैप्टर्स करेंगे तो उनमें वो फॉलो होंगे। I have told you that in capital these things will be added, that will be profit, income and revenue. We will add it in capital. Profit हो तो भी ऐड होगा, इनकम हो तो भी ऐड होगी, और रेवेन्यू हो तो भी ऐड होगा कैपिटल में।
तो कुछ आइटम्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैपिटल में ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं, ताकि आपको आने वाले टाइम में आपको अच्छे से पता होगा तो ही आप क्वेश्चन में अच्छे से कर पाओगे, ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। इसलिए ये सारी आइटम एक बार चेक कर लेते हैं। तो कैपिटल में कौन कौन सी चीज़ें ऐड होंगी? प्रॉफिट, इनकम और रेवेन्यू। तो ये सारी आइटम्स हैं, इनमें से कुछ प्रॉफिट है, कुछ इनकम्स हैं एंड कुछ रेवेन्यूज हैं। सेल है, सेल हमारा, हमने सेल की, हमारे पास इनकम आई, ठीक है, तो सेल ऐड होगा कैपिटल में। अगर हमारे पास सेल करके कुछ कैश आता है तो वो सेल हमारी कैपिटल में ऐड होगी क्योंकि हमें इनकम हुई। देन हमारे पास कमीशन है, कमीशन रिसीव, अगर हम कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो वो भी हमारी इनकम है, तो वो भी हमारी कैपिटल में ऐड होगी। रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव भी हमारा इनकम है। उसके बाद डिविडेंड रिसीव हमारा प्रॉफिट है। मान लो हमने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था और उस इन्वेस्टमेंट में हमें डिविडेंड रिसीव हो रहा है। डिविडेंड मतलब हमने इन्वेस्टमेंट की और उस इन्वेस्टमेंट में हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो वो हमारा डिविडेंड है, वो हमारा प्रॉफिट है, एक तरह से उसमें ऐड होगा। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने डिस्काउंट रिसीव किया। अगर डिस्काउंट रिसीव करते हैं, हम कुछ परचेजेस करने गए तो वो पर्सन ने हमें डिस्काउंट दिया, हमने डिस्काउंट रिसीव किया, दैट मीन्स कि हमें फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो वो कैपिटल में ऐड होगा। अगर हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो वो भी कैपिटल में ऐड होगा। दैट मीन्स कि वो सारी चीज़ें जो हम रिसीव कर रहे हैं वो प्रॉफिट की फॉर्म में हो सकती हैं, इनकम की फॉर्म में हो सकती हैं और रेवेन्यू की फॉर्म में हो सकती हैं। वो सारी चीज़ें कैपिटल में ऐड होंगी। और अगर हम दूसरी साइड और एक चीज़ जैसे मैंने बताई थी वहाँ पे कि आपको एडिशनल कैपिटल भी यहाँ पे ऐड होगी। और इसके बाद है आपके पास ये दो चीज़ें हैं, एक तो ये और एक ये एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड इनकम। The second thing we have in capital that we are going to deduct, that is loss and expenses. One more thing is drawings. अगर हमारे पास ड्राइंग्स होती हैं तो भी हम कैपिटल में से लेस करेंगे, क्योंकि ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसे निकाले हैं, तो वो ड्राइंग्स हैं वो कट होंगी, डिडक्ट होंगी कैपिटल में से। और एक और चीज कैपिटल में से डिडक्ट होगी, वो है लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो हम देखते हैं कौन कौन से लॉसेस और एक्सपेंसेस हैं। फर्स्ट वी हैव कार्टेज, अगर हमने कहीं सामान लेके जाना था तो हमने कार्टेज यूज किया और उसको पैसे दिए, तो हमारा वो एक्सपेंस है। देन वी हैव रेंट पेड, अगर हमने रेंट पे किया, मान लो हम कुछ बिल्डिंग में काम कर रहे हैं तो उस बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हैं, तो वो बिल्डिंग हम बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो रेंट पेड वो हमारा एक्सपेंस है। देन वी हैव वेजेस पेड, अगर हम वेजेस पे करते हैं, एम्प्लॉयज को फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए रखा हुआ है, वर्कर्स को रखा हुआ है, तो वो वेजेस पे कर रहे हैं, वो भी हमारा एक्सपेंस है। देन कमीशन पे, अगर हम कमीशन दे रहे हैं किसी को, मान लो हमने सेल्स करनी है तो उसके लिए हमें कमीशन भी देना पड़ रहा है, किस कोई चीज़ बेचनी है उसके लिए कमीशन देना पड़ रहा है। कमीशन किसी भी तरह के हो सकता है कि हमें किसी पर्सन को अगर कमीशन पे करना है तो वो भी हमारा एक्सपेंस है। उसके बाद हमारे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी फिक्स्ड असेट्स हैं उसकी वैल्यू कम हो रही है तो हमें लॉस हो रहा है, डेप्रिसिएशन, तो वो लॉस है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, अगर मान लो हम सेल कर रहे हैं तो हम उस पर्सन को डिस्काउंट देते हैं कि आप इतने की चीज़ है, दो लोगे तो हम इतने की देंगे, इसके लिए हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं उसको, या फिर जितनी अमाउंट की वो है तो उससे कम अमाउंट हम उससे ले रहे हैं तो हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो हमारे लिए एक लॉस हो गया, क्योंकि हमें जितनी अमाउंट मिलनी थी उससे कम मिल रही है। डिस्काउंट अलाउड, तो वो भी हम कैपिटल में से लेस करते हैं। तो हम बेसिकली कैपिटल में से ये चीज़ें ऐड करते हैं और ये चीज़ें लेस करते हैं। देन हमारे पास था असेट्स, असेट्स में जो ऐड होती हैं चीज़ें वो इंक्रीज होंगी, असेट्स तो वो ऐड होंगी, अगर डिक्रीज होंगी तो वो लेस होंगी। देन वी हैव लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ इंक्रीज होती हैं तो वो ऐड होती हैं, अगर लायबिलिटीज़ डिक्रीज होती हैं तो वो लेस होती हैं। इसी तरह से कैपिटल में ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं और एडिशनल कैपिटल ऐड होती हैं। और कैपिटल में अगर
ये सारी चीज़ें हों तो लेस होती है, दैट मीन्स लॉस एंड एक्सपेंसिव। और अगर ड्राइंग्स होती हैं तो भी कैपिटल में से लेस होती हैं। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, आपको एक बार क्लियर होना चाहिए सो दैट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाओ। वन मोर थिंग इज दैट वन वर्ड है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वो है वर्ड क्लियर। Clear, C means capital, L means liability, E means expenses and losses, A assets, R revenue, income and profits. We know that liability we have done, assets we have done, these are individual terms. But अगर हमने capital किया है तो उसके साथ expenses और losses इसको belong करते हैं capital को, और अगर हमने revenue और income और profit किया वो भी capital को belong करते हैं। तो ये चीज़ें, दोनों चीज़ें, दैट मीन्स एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड इनकम, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, ये दोनों चीज़ें किस पे इफेक्ट डालती हैं? हमारी कैपिटल पे। क्योंकि एक चीज़ के होने की वजह से एक्सपेंसेस और लॉसेस हो तो हमारी कैपिटल रिड्यूस होती है, और रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट हो तो हमारी कैपिटल बढ़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल में अगर रेवेन्यू ऐड कर दिया जाए, आर ऐड कर दिया जाए, और हमारे पास एक्सपेंसेस में ई इसमें से लेस कर दिया जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये वाला टोटल कैपिटल हमारे पास आ जाएगा सी। सी निकालने, एक्चुअल सी मीन्स एक्चुअल कैपिटल निकालने के लिए हम उसमें से एक्सपेंसेस को लेस करेंगे और रेवेन्यूज को जोड़ेंगे, तो कैपिटल में जो स्टार्टिंग ओपनिंग कैपिटल हमारे पास है उसमें से क्वेश्चंस जब करेंगे तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, तो आपको ये लास्ट में कैपिटल मिलेगी। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे।